Hello everyone, welcome back you all in our online video classes. Students, I am here with class 8th mathematics and we are studying chapter number 3rd, understanding quadrilaterals, and we are doing the questions of exercise 3.1. Okay, we have done some questions in our previous one exercise, so today we will discuss more. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन हम अपने पहली वीडियो में कर चुके हैं. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. सो व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन? एग्जामिन द टेबल. ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स reduced from that. Okay, so figure is given, triangle, one triangle, and here two triangles, here three triangles, and here you can see 1 2 3 4 5 and 6 triangles in this figure. Okay, so sides are given, number of sides are here 3, here 4, here 5, here 6, and you have given here angle sum for three-sided polygon, which is triangle, is 180 degree, and for four-sided polygon it is 2 into 180 degree. Then we can do it as 2 in term of side, we can write as 4 minus 2, and then 3 into 180 degree, because 3 triangles are here, so 5 minus 2 we can write it as, because number of sides are here 5, so 5 minus 2. यहाँ पर number of sides हमारे पास 4 था, तो 4 minus 2. यहाँ पर 5 था, 5 minus 2. यहाँ पर हमारे पास number of triangles 6 बन रहे हैं. number of sides हमारे पास 6 है यहाँ पर, और number of triangles हमारे पास कितने बने थे यहाँ पर? 4 into 180 डिग्री. सो 4 into 180 डिग्री हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ट्राइंगल्स थे हमारे पास, और नंबर ऑफ साइड्स कितनी थी यहाँ पर? 6. ओके, so it is 4 into 180 degree, so we can write 4 as number of sides minus 2, 6 minus 2 into 180 degree. so हमें इसमें क्या करना है? क्वेश्चन दिया है हमारे पास, what can you say about the angle sum of a convex polygon with number of sides 7, 8, 10 and d is given here n. तो हमें इन सब पार्ट्स के आंसर देने. सो लेट अस सॉल्व दिस पार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 4, in a part number of sides is equal to 7, so it means the value of n is 7. so we can say angle sum of a polygon, therefore angle sum of convex polygon will be equal to 7 minus 2 into 180 degree, because हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स में से हम 2 को माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई बाय एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल. ओके, सो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 minus 2, 5 into 180 degree, and it will be it will be 900. okay, 900 degree. We'll multiply 180 with 5, it will be 900 degree. okay, so 900 degree is the required angle sum of a polygon having sides 7. Similarly, you can do B part having number of sides 8, C part having number of sides 10, and we can solve for D part. यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन फाइंड आउट करने का, कि नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ साइड्स डी पार्ट में हमारे पास गिवन है n. देयरफॉर एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन, एंगल सम ऑफ
convex polygon will be equal to नंबर ऑफ साइड्स n थी हमारे पास, तो n-2 करेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 180. ओके, तो ये रहेगा हमारा आंसर. ओके, और यहीं से हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है जिसकी हेल्प से हम एंगल सम ऑफ है कॉन्वेक्स पॉलीगन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ let us see question number 5 of this exercise. What is a regular polygon? What is a regular polygon? तो हमें बताना है कि regular polygon क्या होता है. Okay, state the name of a regular polygon of 3 sides, 4 sides and 6 sides. और हमें क्या बताना है इसमें, name of regular polygon कि 3 sided regular polygon को हम क्या कहते हैं, 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, एंड 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलर पॉलीगन. क्वेश्चन नंबर 5. रेगुलर पॉलीगन. सो स्टूडेंट्स, रेगुलर पॉलीगन हमारे पास क्या होता है. A regular polygon is a polygon, or we can write a polygon having all angles are of same measurement, are of same measure, having all angles are of same measure, and all sides are of equal length, and all sides are equal. okay, that is, तो ऐसा पॉलीगन जिसमें सभी एंगल्स सेम मेजरमेंट के होते हैं और सारी साइड्स हमारी इक्वल होती है, हम क्या कहते हैं उनको, रेगुलर पॉलीगन. इन शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं अ पॉलीगन दैट इज a polygon which is equilateral का मतलब बराबर साइड्स जिसकी इक्वल लेंथ की होती है, इक्विलैटरल कहते हैं, एंड इक्वी एंगुलर जिनके एंगल्स क्या हो, इक्वल हो. इक्वी एंगुलर आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन. ओके, तो आई होप सो कि आपको रेगुलर पॉलीगन क्या होता है याद रखना आपने. इक्विलैटरल होता है और इक्वी एंगुलर होता है क्या, रेगुलर पॉलीगन. तो हमसे पूछा गया था व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन, तो इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है. नेक्स्ट हमसे पूछा है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स. ओके, तो फर्स्ट हमसे पूछा है यहाँ पर 3 साइड्स, तो 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, दैट इज, इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो जो हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है वो क्या होता है, 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन. सेकंड हमारे पास यहाँ पर गिवन है 4 साइडेड, सो 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को हम कहते हैं स्क्वायर. ओके, जो स्क्वायर होता है उसमें क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती है और हर एंगल क्या होता है, ईच मेजरमेंट का होता है 90 डिग्री. थर्ड वन हमारे पास है 6 साइड्स, सो वी कैन राइट 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, रेगुलर हेक्सागन. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6. Find the
angle measure x in the following figures. Students, we have given here 4 different figures and we have to find the value of x. This one is very important, very easy, okay, because we know that the sum of all the angles of a quadrilateral having four sides, okay, so it will be 4 minus 2 into 180, that is 360 degree. Okay, we can solve this question very easily, this question again very easily, because this angle will be 90 degree. So both the figures are very simple to solve. So let us solve any one out of these two. Let us solve this figure. Okay, so as you know, here number of sides are 1, 2, 3, 4 and 5. So it is a 5-sided polygon. So first of all, question number 6, C part. सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लिया है 6th पार्ट का, जहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले हमें देखना है कि ये पॉलीगन कौन सा है. तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 साइडेड पॉलीगन है. सो नंबर ऑफ साइड्स आर हेयर 5. सो एंगल सम ऑफ 5-sided, this is 5-sided pentagon, this is actually pentagon, हम इसको pentagon कहते हैं. That is equal to, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, n-2 इंटू 180 डिग्री. हमने पीछे डिस्कस किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, इससे क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस किया था हमने. सो इट इज़ n इज हेयर 5 - 2 इंटू 180 डिग्री. So it will be 3 into 180 degree, so it will be 540 degree. Okay, so total sum of all the angles of this pentagon is 540 degree. Now we have to find the value of x, जिसके लिए हमें सबसे पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इसका फाइंड करना है सबसे पहले. सो वी नो दैट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर कि हमारे पास एक लाइन है और एक ट्रांसवर्सल इसको क्या कर रहा है, यहाँ पर दो एंगल्स में डिवाइड कर रहा है. तो सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी 180 डिग्री. ओके, सो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको. नाउ 70 डिग्री प्लस इस एंगल को हम y कंसिडर कर लेते हैं और इसको z मान लेते हैं. तो 70 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दिस एंगल y विल बी 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. सो y विल बी इक्वल टू 110 डिग्री. सो हमने इस एंगल y की वैल्यू, इसको हमने y लिया था, अपनी ओर से हमने एज्यूम किया था, तो y की वैल्यू आ गई 110. And similarly this z plus 60 also z plus 60 degree is equal to 180 degree. Okay, so from here z is equal to 180 degree minus 60 degree, and the value of z is here 120 degree. So we can write the value of z is 120 degree. Okay, so we can write it as the value of z is 120 degree. So now these two x are same, so we can write now the sum of all the 5 interior angles will be equal to 540 degrees. So now 30 degree plus x plus y plus z plus x will be equal to 1, 2, 3, 4, 5 angles is equal to 540 degree. Now we can put the values. 30 degree plus 1x is here and 1x is here, so x plus x 2x plus the value of y is 110 degree and the value of z is 120
20 degree is equal to 540 degree. Now 2x, and we can add all these three angles, plus it will be 140 plus 120, 30 plus 110, 140 plus 120, it will be 260 degree is equal to 540. Finally 2x is equal to 540 डिग्री. हम इसको बराबर से उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का 260 डिग्री आ गया. 2x इज इक्वल टू माइनस कर देंगे इसमें से तो 0 आ गया. 14 माइनस 6 8 एंड 4 माइनस 2 2 280 डिग्री. फाइनली x विल बी इक्वल टू 280 डिग्री डिवाइड बाई 2, सो इट विल बी 140 degree. Finally the value of x is 140 degree, which is the required answer of this figure. Okay, so finally हमने यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट किया था. हमसे यहाँ पर x का ही वैल्यू पूछा था. स्टूडेंट्स सिमिलरली यू कैन डू डी पार्ट बाय योरसेल्फ, बिकॉज यहाँ पर भी पेंटागन है हमारे पास, इक्वी एंगुलर है, तो हमारे पास हर एंगल यहाँ पर x होगा. बिकॉज रेगुलर पेंटागन है तो x प्लस x प्लस x 5x विल बी इक्वल टू 540. सो इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर, बिकॉज आपके पास हर एंगल क्या है यहाँ पर x. तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x विल बी 5x इज इक्वल टू टोटल एंगल सम कितना होता है इसका, हमने यहाँ पर देखा था पेंटागन के केस में, इट इज़ 540. सो यहाँ पर आप x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व 7th क्वेश्चन. 7th क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया है, फिगर गिवन है हमारे पास और हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई प्लस जेड. सेकेंड भी हमारे पास बिल्कुल सेम दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू. तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, हमें एक्सटीरियर एंगल्स जो है उनका वैल्यू, उनका सम फाइंड आउट करना है. ओके, तो इसमें इस दोनों पार्ट्स में से मैं कोई एक पार्ट सॉल्व कर देता हूँ और एक पार्ट जो बचेगा उसे आपने सॉल्व करना है. राइट, सो इसमें से हम बी पार्ट सॉल्व कर देते हैं, ए पार्ट आपके लिए छोड़ देते हैं जो आसान है. ओके, सो लेट अस सॉल्व बी पार्ट. स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का जो फिगर था हमने बना दिया यहाँ पर. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हमें ये देखना है. तो हमें x, y, z और w का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, और उन सब का वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाएगा तो हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w का जो वैल्यू आएगा उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 120 कितना होगा हमारे पास, लीनियर पेयर बनता है यहाँ पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल x प्लस 120 इज इक्वल टू, we can write here from the figure we have x plus 120 is equal to 180. So we can calculate x is equal to 180 minus 120 and the value of x will be 60. ओके, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई है 60 डिग्री. सिमिलरली y प्लस 80, y plus 80 degree is equal to 180 degree. So it is very clear from here y is equal to 180 minus 80. यहाँ पर भी हम देख रहे हैं लीनियर पेयर बन रहा है हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 100 डिग्री. ओके, तो हमें x का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू मिल गया 100 डिग्री. राइट, सिमिलरली z प्लस 60 डिग्री is equal to 180. okay, so z will be equal to 180 degree minus 60 degree and it is equal to 120 degree. so z का भी हमें वैल्यू मिल गया है. बहुत आसान था वैल्यू फाइंड आउट करना x, y और z का. अब w का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इधर वाला जो एंगल है पता होना चाहिए. ओके, तो हम ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज वी नो दैट इस एंगल को हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इस एंगल को हम टी मान लेते हैं. ओके, सो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे,
sum of all the four interior angles will be equal to 360 degree. So now t प्लस 120 डिग्री, क्योंकि हमने एज्यूम किया है अपनी ओर से तो हम इसको t ले सकते हैं यहाँ पर, प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पर 4 है, 4 माइनस 2 इंटू 180 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 इंटू 180 और वो हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर t प्लस 120 प्लस 80 200 प्लस 60 it will be 260 is equal to 360. Finally the value of t will be 360 degree minus 260 degree, so t will be equal to 100 degree. Okay, the value of the unknown interior angle is 100 degree. So now we can find the value of w. Now w plus t will be equal to 180 degree because linear pair जो हमारे पास बन रहा है, and the value of t will put here w plus 100 is equal to 180. okay, and now w will be 180 degree minus 100 degree is equal to 80 degree, right? So this is the value of w. So we got the value of x, y, z and w. Therefore x plus y plus z plus w will be equal to 60 degree plus the value of x, value of y 100 degree, okay, plus value of z 120 degree, okay, plus value of w which is 80 degree, right? स्टूडेंट्स अपने डिग्री लगा नहीं बोलना है ऊपर, ओके, बिकॉज एंगल्स को हम डिग्री मेजर कर रहे हैं यहाँ पर। सो समड अप करेंगे इनको, तुम्हारे पास कितना आएगा 0 6 प्लस 2 8 प्लस 8 16 6 कैरी ओवर 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3। तुम्हारे पास जो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का वैल्यू आ गया, इट इज़ 360 डिग्री। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7b part. Students, remaining part of this exercise is your homework and you have to solve them by yourself, and if you have any problem anywhere you can ask me on WhatsApp. So that's all. Practice more and more.